भाई. Okay, इनको मैंने बहुत सिखाया है. I've taught them a few things. Okay, तो एक बार फिर से. Ladies and gentlemen, आवाज. Okay. Ooh, do you have a mic? Okay, Rashmika, you have a mic. Siddharth has a mic. Firstly, I just want to ask you a very, very important question. There's a lot of traffic. When was the last time you actually rode a scooter, bro? Oh, man. What's up, Mumbai? Well, pehli baat to, Merry Christmas to everyone here. And we're super excited with our new song in our new film, Mission Majnu. And then coming back to his question, पहली बार जो मेरे स्कूटर चलाया शायद इसी फिल्म के लिए चलाया हमने रश्मिका के साथ इस पिक्चर में रोमांस करते हुए क्योंकि मिशन मजनू हमारी पिक्चर है जो 1970s में बेस्ड है. Love you, man, love you. And talking about love, we're right here to release our love song of Mission Majnu from 1970s. And it's Rashmika's first love song in Hindi. Yay! Okay, so I had to ask him about his scooter tales. लेकिन आपसे ये पूछना है, like he's already mentioned, we all know कि ये आपका पहला out and out romantic number है. हाँ जी. रश्मिका, अब क्या करें? हिंदी फिल्में जो है वो पीछा छोड़ती नहीं है ना हमारा. तो when you were growing up, तो वो कौन से गाने हैं? At least कौन से वो iconic duos हैं जिनको देख के आपको लगता था one day मैं भी बड़े पर्दे पर कुछ ऐसे ही romantic गाने जो है अपने हीरो के साथ shoot कर रही होंगी? As in, पहले से hi everyone. First of all, Merry Christmas to all of you. Thank you so much for coming here and joining us in this celebration. Thank you. I love you. And yeah, this. सबको वीडियो पे मिल गया ना ये? Okay, great. Okay, and coming back to the question. And back to the question, yes. And I think Bollywood romantic songs were a thing. Like for me, while growing up, the whole time, romantic songs, matlab, it was Bollywood romantic songs, you know. In South, we have all mass masala, item numbers and all dance numbers. We know. Yeah, okay. हमने भी देखी, हमने भी सामी देखी है यार, ऐसा नहीं है. हाँ. No, but this is my first Bollywood romantic song and I'm so excited because it's so good and I'm waiting for you all to listen to it. All right. Okay, first up, ये जितनी भी जनता बैठी हुई है, नहीं खड़ी हुई है, वो बैठ जाए क्योंकि पीछे कंसोल से उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग गाने क्यों नहीं कर पाएंगे? आप रिक्वेस्ट कर दो यार बैठने के लिए. सिद्धार्थ. Guys, do you want to see the love song? So for the guys right at the back to see if the people here sit down, and we will make you guys watch our first love song from Mission Majnu and Rashmika's first Hindi romantic song. Are you ready? Should we cue the song? कर दे चालू? Okay. ये देखिए इस गाने में बिल्कुल भी dancing steps नहीं है, but this is only for you guys right here for all the love on Rashmika's first Hindi romantic song. Awesome, right? Our first romantic song together. जब आपने ये गाना पहली बार सुना, because जब ट्रेलर आएगा तो उस टाइम पे हम फिल्म की और बात कर पाएंगे, but today if you're focusing on just this song रब्बा जानदा, जब आपने पहली बार सुना, did you share it with a lot of friends? Did you listen to it again and again अपनी गाड़ी में on loop? As in, when we were shooting, of course, I didn't have the song, but I heard it, and constantly the tune was just constantly going on in my head, and I fell in love with the song the first time I heard it. And now I want to know, what is your reaction to the song? Do you guys like it? Like it or really like it? See, that's exactly my question. Exactly our reaction. Did you message him immediately? Yeah. What did you tell him? We were shooting now, so I was like, "Arey, we have a banging song, really nice, really cool." Absolutely, absolutely. This is our only love song in the film, and we shot it months later when we shot. And I think Tanishq, the composer, has done a great job. We've got Z Music again. You know, I've already done so much work with Z, whether it's Kala Chashma, whether it's Thoda Thoda Pyar. So we're really excited to bring this new love song to you, and hopefully it gets a lot of love from you guys. The one that we are getting right now, and सरप्राइज है, एक और सरप्राइज है. नहीं अभी तक ये सिड यार, ये सवाल मेरे को पूछना है क्योंकि जो सवाल मेरे पास आए वो तो मैं बाद में भी पूछ लूंगा. एक टाइम था शम्मी कपूर का जब उनको किस्मत में इतने अच्छे अच्छे गाने मिल जाते थे. देन शाहरुख केम, देन इमरान हाशमी also started getting songs.
राइट फ्रॉम एक विलन टू राता लंबिया इन शेरशाह टू थोड़ा थोड़ा प्यार, ये सडनली जो भगवान मेहरबान हुआ और तुम्हारी झोली में एक के बाद एक हिट गाना आ रहा है, व्हाट डज इट फील लाइक? क्योंकि ये आप बयान नहीं कर सकते, क्योंकि फिल्में आती हैं, फिल्में चली जाती हैं, लोग गाने याद रखते हैं, राइट? हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? बिल्कुल यार, I think it's great. It's there's so much love to share with all of you. Whether it comes in romantic songs, just like right here, Rabba Janda, or it comes from my previous film Shersha, where we got so much love for. I think it's always great to romance. I'm lucky to actually romance so many women on screen and get the love and portray that old school charm of a man singing to a girl. I think Mission Majnu Rabba Janda is also special. This is the first time हम 1970s के रूप में मैं रोमांस कर रहा हूँ एक हीरोइन को. सो वी होपिंग दैट इस पिक्चर को भी, इस गाने को भी उतना ही प्यार मिलेगा जैसे आपने पुराने गानों को दिया है. सो होपफुली दिस सॉन्ग्स एंड द फिल्म विल लिव ऑन फॉर years and months to come. Yes, sir. So my question to you is that what are the changes that you have observed in the way films are produced post the pandemic? Is there any change in the economics of filmmaking for you, Amar? It's for you. Producer साहब. I mean, I think we're all learning post the pandemic, and I'm sure it's going to be a learning curve for the next year or so. But I think good content is not going anywhere. We have a great story, a really good film, and I think we're really, really lucky to have Netflix with us on this. I think the team is here, and a big shout out to them because I think they've really managed to put this film on a pedestal, and we're hoping that it gets a lot of love. जैसे फिल्म का नाम है मिशन मजनू, कभी मजनूगिरी की है लाइक यू नो कॉलेज में या स्कूल डेज में? कुछ बता. मुझे पता था सोहेल भाई ऐसा कोई सवाल पूछेंगे. सोहेल भाई ने एकदम मतलब नहीं, बिल्कुल बिल्कुल. मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ. दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी भगत सिंह में मैंने आई थिंक एक ही चीज़ सीखी है, वो थी ड्राइविंग. जहाँ पे मैंने ड्राइव करते करते काफ़ी आई थिंक बहुत अच्छा, आई वाज लकी इनफ टू हैव गुड पैसेंजर्स विद मी ड्राइव करते करते. तो मेरे हम सफ़र जो उस टाइम पे थे बहुत इंटरेस्टिंग थे और बहुत अच्छा मज़े मजनूगिरी करी है उस टाइम पे. एंड आई थिंक हर लड़के की लाइफ में मजनूगिरी ज़रूरी भी होती है. बिकॉज प्यार तो करना उस ज़माने में जब आप होते हैं, उस टाइम पे जब कॉलेज में होते हो, अगर तब आप अपना प्यार किसी को इजहार नहीं करोगे या किसी के साथ वो मेमोरीज बनाने की कोशिश नहीं करोगे, तो आई थिंक फिर आप वो जवानी वेस्ट हो जाएगी शायद. तो आई थिंक मजनूगिरी बहुत जरूरी है, हमने भी बहुत करी है दिल्ली में. और सोहेल आपने ध्यान दिया, उन्होंने पैसेंजर नहीं पैसेंजर्स बोले. प्लूरल था, प्लूरल. अरे 3 साल कॉलेज था भाई. सिद्धार्थ, 3 साल कॉलेज के. यू आर राइट. इधर से सवाल आ रहा है. सबसे पहले तो शिकायत है कि जब से ये सॉन्ग देखा अच्छे नहीं लग रहे, दूर दूर खड़े खड़े आप लोग साथ में आ जाइए. ये लीजिए आ गए हम. आप ही बनेंगे काजी. मजा आ रहा है. राहुल यार फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. मेरा सवाल आप दोनों से ये था कि मजनू का मिशन तो शुरू हो चुका है, पहले टीजर आया, अभी सॉन्ग आया, फिर ट्रेलर आएगा, फिल्म आएगा. लेकिन रियल लाइफ की बात करूं तो आप दोनों के लिए कॉमन क्वेश्चन है, कभी अगर किसी चीज़ के लिए मजनू बनने की ज़रूरत पड़े तो क्या ऐसा लाइफ में कोई मिशन है आप लोगों का जिसमें के लिए मजनू बनेंगे? मजनू मतलब सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए नहीं होता, किसी भी काम में मजनू बन सकते हैं आप. तो आपके अपने अपने मिशन कोई ऐसा जिसके लिए मजनू बनने चाहेंगे आप कभी लाइफ में? यार मेरे लिए चाहे इवन ये हमारी पिक्चर हो, पहले ये किरदार या हम सब जो इस कहानी को बना रहे हैं, पहले हम देश के लिए मजनू हैं इस पिक्चर में, कि अपने देश के लिए हम चाहते हैं ये जो सब लोग यहाँ पे हैं, ये जो हम द फ्रीडम दैट वी आर एंजॉयिंग, कि हम यहाँ पे घुल मिलकर ये चीज़ सेलिब्रेट कर सकते हैं. इट्स ऑल थैंक्स टू द कंट्री वी लिव इन, द डेमोक्रेसी वी हैव, एंड जो सारे लोग इसको ऐसे सुरक्षित रखने में काम करते हैं दिन रात, सारे फोर्सेस हो, आर्म फोर्सेस हो, या तो जो एजेंसी जिसके लिए मैं ऐसा किरदार प्ले कर रहा हूँ, रॉ एजेंसी हो. तो पहले मैं कहूँगा कि हम देश के मजनू हैं. और मैं भी एक मेरे दादू इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं वो, एंड तो मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ. एंड जो कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी हमने दर्शाई शेरशाह में पिछले साल, उधर से भी हम दिखाना चाहते हैं कि लोग कितनी मेहनत करते हैं हमारे इस देश को सुरक्षित रखने के लिए. तो आई थिंक वो मजनूगिरी हर एक इंडियन में होनी चाहिए. मैं ज़रूर बिलीव करता हूँ, और इस पिक्चर में भी आपको वो जुनून दिखेगा, वो मजनूगिरी पहले दिखेगी, फिर मोहतरमा जी आती हैं उसके बाद. तो आई थिंक देश पहले, और मैं ये किरदार के लिए भी कहना चाहूँगा कि देश पहले और फिर रश्मिका जी इस मजनू को पागल करती हैं.
रश्मिका आप आंसर Hello, दीजिए, hello, आप sir. रियल लाइफ में किस चीज़ के लिए मजनू बनना चाहेंगे कभी मौका मिला तो? So already Sid ने answer किया, लेकिन I also want to add that I feel extremely responsible for the love we get from the whole country, the whole world in fact. So I think yeah, for the love we get, I want to be like Majnu to all my fans. सिद्धार्थ कभी ऑन सर ये जो- रुक ये जाओ, इन्होंने सुनो जो- ना, और भी लोग हैं कतार ऑन में। स्क्रीन कभी आपको ऑफर मिले, चॉइस मिले 3-4 हीरोइन का कि मजनू आप ऑन स्क्रीन किसके लिए बनना चाहेंगे, तो आप चूज कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं है। मैं तो कितने सारे मैं इतना चूज ही नहीं हूँ ऑन स्क्रीन। Okay. मैंने मजनूगिरी बहुत करी है। पीछे से आवाज आ रही है कुछ। हेलो। अभी पिछले साल तो अच्छा हाँ बताइए, पिछली साल ओके मैम, यू हैव अ क्वेश्चन। ये गाना देख के मुझे एक फिल्म याद आ गई, फना, जिसमें कि काजोल ऐसे ही सुंदर थी और उनकी आंखों की तारीफ थी, और आमिर खान थे जो सिद्धार्थ जी दिखाई दे रहे हैं अभी फिलहाल मुझे। तो क्या ये फिर से बात ये यादगार ताजा होने वाली है इस फिल्म से? जी, हम तो बहुत खुश होंगे। हम तो उम्मीद करते हैं। बहुत ही प्यारी पिक्चर थी वो, प्यारे गाने थे उसमें भी। बिल्कुल उसमें भी यही कि काजोल मैम ने जो किरदार प्ले किया है वो भी विजुअली इम्पेयर्ड है, और यहाँ पे भी सेम चीज़ है। बट एक्चुअली मेरे जहन में जब मैं पिक्चर कर रहा था, क्योंकि ये 1970s में बेस्ड है, मेरे में रेफरेंस, क्योंकि मैं बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मेरे में वो रेफरेंस था बच्चन साहब की लुक, बेल बॉटम शूज और वाइट कॉलर्ड शर्ट्स, उस जमाने में रोमांस करना। तो मेरे लिए ये जो पहली बार मैं 70s का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, वो बहुत ही प्यारा रेफरेंस था। तो उम्मीद करते हैं लोगों को पसंद आए। Hi Siddharth, I want to know, you are saying that this movie is in 1970 base. So how was it experience? 1970s में तो बहुत रोमांटिक गाने आए हुए थे, बहुत सारे। तो आपके कुछ फेवरेट है, और आपको इस एरा को रिक्रिएट करने में कितना आपको मज़ा आया, कि क्या डिफिकल्टी आई? जी बिल्कुल, आई थिंक 1970 में जो रोमांटिक गाने थे, ओल्ड स्कूल रोमांस, उनके लिरिक्स ही अलग थे। मैं किशोर कुमार जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, जिन्होंने बहुत ही हीरोइक और प्यारे तरीके से बहुत सारे गानों को दर्शाया है और गाया है। इस गाने में मुझे लिप सिंक करने का मौका नहीं मिला। एक ही शिकायत थी प्रोड्यूसर साहब से कि यार मेरे को अगर लिप सिंक करने का मौका मिलता है ये गाना, बट तभी भी मैं कहूँगा, आई थिंक चाहे वो प्रोड्यूसर साहब हो, हमारे डायरेक्टर साहब हो, शांतनु बागची जी, सबने मेहनत करी है कि हम एक 90s 70s के एरा को बहुत ही उस जमाने में आई थिंक इनोसेंस और जो चीज़ें काफ़ी सिंपल थी, बिकॉज हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी आई थिंक मैं कहूँगा एक्टिविटीज़ या ऑप्शंस नहीं थे, सिवाय लोग काम करते थे, या तो आई थिंक टेक्नोलॉजी भी डिफरेंट थी। सो आई थिंक यू कुड इंटरैक्ट विद समबडी इन मच सिंपलर वेज इन दोज टाइम्स। तो वही कोशिश करिए कि इनोसेंट 1970s का प्यार। रश्मिका, मेरा सवाल आपसे है। आपको हमारी इंडस्ट्री ने, बॉलीवुड ने हाथों हाथ लिया और पैन इंडिया में आप एकदम फेमस हैं, लेकिन आपके जो साउथ है वहां पर हमारे स्टार्स को, बॉलीवुड स्टार्स को किस तरह से देखा जाता है? Oh, we all absolutely love all the stars here. आपको तो पता है, it's all the films are becoming pan-India films now, and you have so much love from us South, and we're just waiting for all the films which are going to be releasing. Very excited. ये भाई ये अच्छा हाँ जी, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कहते हैं ना कि रब्बा सब कुछ जानता है, लेकिन सिद्धार्थ से ये मेरा सवाल है कि सिद्धार्थ भी सब कुछ जानता है, कि उसका अगला कौन सा ऐसा मिशन है जिसके लिए बहुत ही एक्साइटेड है? जो ये सुनना चाहते हैं ना, देखिए अब अभी सिर्फ मिशन मजनू है। अब मजनू की जिंदगी में आगे क्या होता है वो आपको देखना ही पड़ेगा अगले साल। ऐसा मजनू कैसा जो इजहार कर दे और फिर बाद में हो, सीधा करेंगे यार हम। मेरा सवाल सबसे पहले आपसे, पहले सवाल नहीं, मैं कहूंगा कि आप और रश्मिका दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आज, और आपकी जोड़ी, थैंक यू, आपकी जोड़ी भी बहुत प्यारी लग रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने इससे पहले एक्शन मूवीज़ भी किए हैं और आपने रोमांटिक मूवीज़ की है, तो पर्दे पे आपके लिए रोमांस करना ज़्यादा ईजी है या एक्शन करना ज़्यादा ईजी है? अरे वाह, Good question. आई थिंक एक्शन के साथ रोमांस, एक्शन, रोमांस और एक्शन। देखो एक्शन तभी मजा आता है जब वो रोमांस के लिए हो, डेफिनेटली। अदरवाइज जिंदगी में लड़ने के लिए और कुछ नहीं है। सिर्फ वो प्यार के लिए लड़ो, चाहे वो देश का प्यार हो, देश के लिए रोमांस हो, या तो वो किसी मोहतरमा जी के लिए हो, डेफिनेटली तभी मजा आता है। एंड रश्मिका, फॉर यू, कि सिद्धार्थ के साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक
मुझे बहुत ही इजी था because I think पहली बार he was the first actor that I worked with in the north and I was very nervous. Okay. लेकिन I think just because how amazingly nice he was that I found it extremely comfortable. तो I was extremely comfortable and thank you. Really, I never got the chance. One more Thank thing, you one more so thing, much Rashmika. for- One more thing. अगर एक वर्ड में तीन पार्ट सवाल, तीन एक बार वर्ड one more. अगर एक वर्ड में सिद्धार्थ को आपको बताना हो तो आप क्या कहोगे सिद्धार्थ के लिए? Just one word answer. For what question? What kind Like of कि word? being सिद्धार्थ कैसा इंसान है? बस एक वर्ड में अगर बताना हो तो. adjective to Like, describe Yeah, Siddharth. सिद्धार्थ. Sid is full love. Oh, fantastic, amazing. यार Nice. Okay, one last question from this gentleman. जी What is it about you, Siddharth, that girls, visually impaired girls, fall in love with you? I think whether it was Marjava and now this. मरजावा में वो she was not visually impaired. Oh, I think she was, she had, but. आप देख लो पहले, फिर मिलते हैं. Okay, Rashmika, for you, obviously, it was mentioned earlier that this was supposed to be your debut film. And I think usually what happens is when people make their debut, they make their debut with a romantic film. And unfortunately, because due to some other reason, this couldn't be your first film. But ideally, you wouldn't you have wished that, for a subject like this to come in the theaters, that would have been your wish? Would you like to comment on that? As in, for us, filmmaking is what we live for, sir. This love, what we receive is what we live for. So it doesn't matter if it's coming on OTT, theater, as long as people watch it and love it, that's all we want. And But considering there's that you're a nothing like- masses actor, in South, you're a very popular mass actor, and I'm sure the similar the similar kind of love I think has been तो showered अच्छा to नहीं, you. पहली बार ये masses के घर पे जा रही हैं. Instead of bringing them to cinema, she will go to their homes to entertain them. Okay. in the end of the day, we're all entertainers, and as long as we have this love, that's all matters. Thank you. Okay, there's this really sweet boy who's actually done this here live. वो बैठे. अरे वाह. So if you could just sign this for him. Sweet. His name is. Lovely. Yeah, this is. Thank you, man. If you just sign it.